Hello, everyone. Am I audible properly? Hello, can somebody confirm that if I'm audible? Let me rejoin. Hello, Ashutosh. Can you hear me now? Can you please confirm by chat or something, Ashutosh? Because I'm also on my phone. Yes, actually. sir. Yes, sir. You are audible. Okay, perfect. Okay. Yep, I am on the account with phone actually. Let me say hello. Can you make that, the host actually, and I will be want to use the audio on the phone from this one. Actually, uh, so this is hello with a single L. That's one of the co-hosts, if possible. And then I'm gonna send you another message. Yes, sir. I've made you co-host. Can you have two co-hosts as well? Because I want this one on the phone as well to be a co-host in case you later meet someone. I've made both the accounts co-host. Perfect, perfect. Yeah, just give me 2 minutes to set up, I guess, while students are also joining in. I see. Uh, I think that there will be short introduction of yours. Yeah, let's just start in a minute, I guess. So I think anybody from Yes, the sir. Hello, sir. Sir, if you are ready, then we can start. Just give me 1 minute. I'm just confirming something with the screens and everything. Yes, Could you sir, just because confirm students me are that? also joining. Yeah, can you just confirm quickly that my screen is visible to you? Then I'll just reshare after that. Yes, sir, it's visible. You see the PDF here, right? Yes, sir. Okay. 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 Thank you. Yeah, I guess we can start. Good evening, everyone. I'm Purvanshi Jhavan, the coordinator of Coding Club of IIT Jammu. First of all, I would like to welcome you all and congratulate you for becoming the part of this prestigious institution. The Coding Club of IIT Jammu, it is the most active and exciting club. And on behalf of it, I would like to welcome you all to this Yes Talk. But before we start this exciting session, let me introduce our guest speaker, Mr. Nishchal Gaba, to all of you. He is the director of Prodigal AI, which is a research startup in AI and blockchain, and its head office is in Sydney. He has done his MSc in AI from University of Edinburgh and has multiple international research publications. He was the CTO in ZQ, which is a cloud orchestration firm in Singapore, and he has given multiple sessions in IIT Jammu, NIT Hamirpur, Bharatiya Vidyapeeth College, Delhi. His achievements has a huge list such that we'll have to conduct another session for it. So let's just grab the opportunity to have a great learning about startups and his experiences. I welcome you, sir, and I'm sure you will make this evening the best start for this session for our new batch. Over to you, sir. Thank you so much, Purvanshi, for your kind words, actually.
I always feel very happy coming to students, and that's how I always start my sessions because sometimes you don't realize, that you have passed out from college and this is the same place you used to be, right? We attend sessions and everything. So I'll try my best, thank you for this opportunity, and I'll try my best to, give back to the students what I've learned over the years, and you can say it's very difficult to do that in one session. But as I usually point out in my sessions, I can try my best to give you the direction that that these are the 20 steps in this direction that are going to help you. But you guys will have to do the those steps as well. Although the session is remote, usually I'm very habitual to taking sessions offline, interacting with students, seeing their faces as well. So one request to all, you might be at home, so it's an evening time as well. It might be from college as well. So one small request, if you can all, have, sit up and, take a deep breath and just focus on the session. It will be very good. Um, okay, so my video is not visible. Okay, Purvanshi, just give me 1 minute. I'll have to recheck my camera and then we can begin. Sure? Sure, sir. Sure. I'll just set up my camera. Actually, it's an external camera, so it's not showing up. Just give me 10-15 seconds. I'll do it. Yes, sir. Yeah, please let me know in 5 seconds that if my video is showing up. I think it should be showing up now. Can you guys see me? Purvanshi, can you confirm if you can see me now in the video? No, sir. Right now, I can't see you. My mic and videos are different actually. So if you can pin this one, it should be up. Don't you see? I can see my own video. That's why I'm mentioning that. The one sharing the screen actually. Anybody else can quickly confirm because I can see myself. Because I am getting complaint that the video was not visible. I am able to see myself in the Zoom now. Sorry. Yes, sir. Now you're visible. Perfect, perfect. Yeah, so let's begin, I guess. So thank you all for this session. It's always lovely and a pleasure to, meet the students, have an interaction with them while they're just starting out. Feels like if somebody was there for us, who can guide to us, that would have been a boon. And hopefully, we can connect and I can try my best to give you years of experience within this session. And it can actually make a difference in your life and not just a session, that we come and go by. So we'll cover many key points there. First of all, we'll talk about startups, how you can start your own startup and what is one of the most important ingredients that you need to work on to actually, run any startup or even, big organizations. I personally have been leading organizations for the past 7 years, multiple international organizations as well. And I think this is, I'm going to try to give you one of the key points actually in all of my experience, which is one of the most difficult to do things things to do in a startup. So let's begin. Just give me a second. Sorry. Yeah. So let's see, what is entrepreneurship? That's what we're going to see. What is a startup actually? And what do you actually mean by startup? This is a very cool term, हम लोग सुनते हैं. Purvanshi, do you want me to mix Hindi and English or should I just stick to English properly? If it's good, I mix it. Just to start. Yes, sir. You can be bilingual. Okay, thank you so much. So let's see, what is entrepreneurship? Actually, entrepreneurship है क्या? Startup is a very cool term. हम लोग बाहर जाते हैं तो सुनते हैं startup and we feel like क्या कर रहे हो startup कर रहे हैं, right? We get excited. Must be the easiest money out there, right? ऐसा लगता है ना जैसे एक sweet fruit का नाम सुना है, startup, right? मुंह में पानी आ जाता है. So, but we'll actually see what actually is entrepreneurship है क्या? एक startup होता क्या है ना? और क्या कुछ ऐसे reasons होते हैं जिनके कारण हमें startup नहीं start करना चाहिए? Usually, all that glitters is not gold वाली कहावत यहाँ पे बहुत applicable होती है. Because you actually see, there may be a very wrong reasons, peer pressure हो सकता है, बहुत चीजें हम discuss करेंगे यहाँ पे. And then suppose you have an idea, what should you do next?
और आइडिया बन गया, प्लान बन गया, पूरा ब्लूप्रिंट सर ने बना दिया, क्या 5 मिनट में स्टार्टअप निकलने वाला है? ऐसा सेशन नहीं है. Then I'll actually focus, and after years of my experience I'll share where were the highs and lows of my career. और बाकी काफी सारे स्टार्टअप से मैंने इंटरेक्ट करा, लीड करा, एआई ब्लॉकचेन दोनों फील्ड्स में, तो टेक और मार्केटिंग दोनों का एक्सपोजर रहा. और वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स क्या है और किन चीजों ने मुझे हेल्प करी, एंड ऑल्सो आई एम एबल टू सी आउटसाइड दैट व्हाट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एज एन एंटरप्रेन्योर दैट यू मस्ट हैव. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप. अगर सिर्फ डेफिनेशन वाइज करें तो capacity and willingness to develop, organize and manage a business venture along with any of its risks in order to make a profit. सीधी सी बात है, आप बिजनेस ओनर हो, आप एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हो जो कि डिसऑर्गेनाइज सी लग रही है. आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने से पैसा आएगा और उससे आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो. सिंपल सी बात है, बहुत आसान लगता है. एंटरप्रेन्योर बनते हैं, अपने खुद का स्टार्टअप रहेगा. अभी स्टार्टअप टर्म कहाँ पे आती है? बिजनेसेस भी तो यही कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स भी यही कर रहे हैं, जब सेलिंग सर्विसेज कोई कुछ बेच रहा है, राइट. फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्यूशन क्लासेस कर रहे हो अपने, राइट, अब तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी काफी अप हो गए. फिजिक्स वाला का आप एग्जांपल देखो. सो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, आप क्या कर रहे हो, आप खुद को एक बिजनेस को लीड करने के लिए तैयार कर रहे हो. ये बहुत कीवर्ड है, आप लोग इसको सेशन के लास्ट तक याद रखना. लीड करने के लिए, बिजनेस का पार्ट नहीं बन रहे हो. आप एक जॉब नहीं ले रहे हो कि आई एम सिटिंग देयर और किसी तरह महीना पूरा और सैलरी आए. यू आर गोइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द कर्व, है ना. आप लोग नया स्टार्ट कर रहे हो और आप में से कई लोगों के पास ग्रेट आइडियाज भी होंगे एंड दे वुड वांट टू वर्क ऑन इट एज वेल. बट आप फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज का डिफरेंस समझने के लिए आप जा रहे हो, और उसमें एक की टर्म है, आप लीडर बन रहे हो, इस साइड से यहां जा रहे हो. तो आपको कई सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी. दिस इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स व्हिच विल बी कवर एट द लास्ट ऑफ द सेशन, कि व्हाट आर दोस थिंग्स. अब कुछ मिथ्स होती है एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में. जैसे मान लो स्टार्टअप ओनर बनना है, तो एक मिथ होती है कि स्टार्ट एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न बट नॉट मेड. इसका मतलब क्या है कि ये जिन लोगों को मतलब बिजनेस नैक है, जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, वही लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, राइट. तो दूसरा तबका क्या कहता है, ड्रॉप आउट करके स्टार्टअप करा जा सकता है, राइट. एंड जो ड्रॉप आउट कर रहा है, जो पढ़ाई में बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, एंड ही इज एक्टिंग कूल डूड, तो ही इज एन एंटरप्रेन्योर, ही इज बोर्न एंटरप्रेन्योर. ऐसा नहीं है. एंटरप्रेन्योर यूजुअली, अगर आप देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन में कौन है, आप अपना एक बिजनेस लीड करना चाह रहे हो, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी. अब एक बात बताओ, इट्स अ डिफरेंट जर्नी फॉर एवरीबॉडी, राइट. आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू सॉल्व? थोड़ा सा ऑडियंस इंटरेक्शन कर सकते हैं बीच में, बहुत स्मॉल सा. पूर्वांशी, दे कैन अनम्यूट देमसेल्व्स एज वेल, राइट, मतलब अलाउड है? यस सर. अच्छा, चलो फिर आपसे पूछते. पूर्वांशी, आप लीड कर रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आर यू अ बोर्न एंटरप्रेन्योर या फिर यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर? कैसे पता चलेगा ये प्रॉब्लम है लाइफ की जो मैं सॉल्व करना चाहती हूँ? हाउ विल यू नो? सर आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर जो लोग बिजनेस फैमिली से आते हैं, उन लोगों को तो स्टार्टिंग से ही होता है कि दे कैन बी एंटरप्रेन्योर्स. बट फॉर अदर्स आई थिंक इफ दे हैव अ different idea, a very different idea than others, then they can be. चलो, इस मिथ को हम लोग ब्रेक करेंगे इस सेशन में. और मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं एक्चुअली, जो लोग बिजनेस क्लास से आते हैं, उनको नया आइडिया ट्राई करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है. पापा कहते हैं ये दुकान संभालो, राइट. यू गो टू आवर शॉप और यू गो टू आवर एग्जिस्टिंग बिजनेस and try to make that up, right. I even had one of my friends in BTech, very close friend, and he runs a steel factory. So his father said, you have studied enough, come to the factory within 4th year and just somehow give your exams. कुछ मिथ्स है, इसको हम देखेंगे. तो थैंक यू फॉर द आंसर. आई स्लोली कीप इंटरेक्टिंग विद द ऑडियंस. तो मुझे लगता है मोनोलॉग करना इतना अच्छा नहीं लगता. ठीक है. दूसरा, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, आपने फैसला किया है, तो हमें लगता है इंडिविजुअल स्टार्ट करना, कि मैं अकेले सब कुछ कर लूंगा, मैं अकेले मार्केटिंग भी कर लूंगा, मैं अकेले इसके टेक्निकल पीपीटीज भी बना लूंगा, प्रोडक्ट भी कर लूंगा, कोडिंग भी कर लूंगा, और फाइनेंस भी कर लूंगा फ्रीलांसिंग करके. इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. और ये बहुत की एस्पेक्ट है. एक मैंने आपको की एस्पेक्ट बोला अब तक सेशन का, आप लिख सकते हो. यू आर बिकमिंग अ लीडर. सेकेंड की एस्पेक्ट है, आपको एक टीम चाहिए. टीम चाहिए, उसको कैसे करोगे? आपको एक गुड एसोसिएशन चाहिए. टीम दो तरह से हो सकती है. एक हो सकता है आपके साथ जो फुल टाइम काम कर रहे हैं,
या आपको आसपास ऐसे लोग चाहिए, गुड एसोसिएशन चाहिए जो कि आपको बूस्ट करेगा. अब ये बूस्ट क्यों चाहिए मैं आगे जाके इसको बताऊंगा. बट सेकंड इज, फर्स्ट इज यू वांट टू बिकम अ लीडर, सेकंड इज यू नीड गुड एसोसिएशन अराउंड यू. थर्ड, ऐसा लगता है मैं एंटरप्रेन्योर्स आर द स्मार्टेस्ट पीपल. मतलब एक आईक्यू टेस्ट लेते हैं और आईक्यू टेस्ट में जो कॉलेज में टॉप करेगा उसको एंटरप्रेन्योर बना देते हैं, राइट. तो ये एक मिथ है. देयर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्ट. अगर आप कॉलेज में आजकल जेनजी में वो सारे यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया एज वेल, एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट, नॉट जस्ट बुक स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट. ठीक एग्जांपल देता हूँ. अब I come from an AI ML field myself, right? I come from that background and I use the mathematics that I've studied through my primary, through my college days as well, and even after that I'm continuing my mathematics altogether, right? But how many people actually continue their mathematics after the college as well? And there is a funny phrase रहता है हमेशा, ये math cos theta tan theta किसको काम आया है ना, और ये Bayesian probability, ये एक बॉल डाला रेड ब्लू कैसे पता चलेगा. You can use it if it's in your field. तो वो मैथ मेरे लिए, मेरे को बिजनेस को इंटरेक्ट करने में काम करती है, लोगों को इंप्रेस करने में काम करती है. सो व्हाट इज हैपनिंग इज इट्स अ स्ट्रीट नॉलेज दैट आई एम एबल टू यूज कि कहाँ यूज होगी. एआई मॉडल बनाने के लिए इसका क्या यूज आएगा, प्रोबेबिलिटी का मॉडल कहाँ पे एरर दे सकता है. बट ऐसा नहीं है कि आई हैव द हाईएस्ट आईक्यू, या मतलब ऐसा है कि मेरी मेमोरी बिल्कुल फोटोजेनिक मेमोरी एंड आई रीड बुक्स एंड आई डोंट स्लीप एट ऑल एंड आई एम सुपरमैन. It doesn't work like that. Entrepreneurs are not the smartest people in terms of the bookish knowledge. They are the smartest people in terms of understanding what is actually happening outside. और ये एक तीसरा की एस्पेक्ट है जो एज अ स्टूडेंट यू मस्ट डू. हम लोग इसको लेके काफी सारे समर में बहुत सेशंस भी कराते हैं, स्टडी कोर्सेज एंड अदर काइंड ऑफ कोर्सेज एज वेल. व्हाई? क्योंकि आप जब एक स्टूडेंट होते हो ना, so you are getting a knowledge from one place. आप knowledge acquire कर रहे हो अपनी बुक से, अपने आसपास के peers से, but still there is a huge industry gap. आप देखोगे placements में जब you बैठते हो और actually आप जो कंपनी में काम करते हो, there is a huge gap. There is a lot of industrial gap which has to be covered. और usually entrepreneur ये street smart way में ये cover करता है. उसे पता है मार्केट में क्या चाहिए. AI तो चाहिए, but AI यूज कहाँ होगी. क्या इससे मेरे को सेल्फ ड्राइविंग कार बनानी है, इससे मुझे ड्रोन बनाना है, इससे मुझे चैट जीपीटी बनाना है. आप अपना खुद का चैट जीपीटी बना सकते हो. सो दैट इज देयर. द फोर्थ इज, बहुत क्विकली इसको आगे चलेंगे, बहुत लंबा चलेगा नहीं. ऑल लीडर्स आर कैरिस्मेटिक, राइट. ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल रणबीर कपूर होने चाहिए, राइट. लीडर एंटरप्रेन्योर आए तो गाड़ियां आ जाए, कुछ आ जाए. आइडियली अगर आप देखोगे ना, इन माय अर्ली एंटरप्रेन्योर डेज आई वाज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट पीपल. Now I was always thinking why to spend more, even a penny, on something which I don't want, and why not save it for my own business, right? Every penny counts towards your business. So I was like, why not focus? So leaders are not always charismatic outside, but internally बहुत important है कि आप में enthusiasm हो, आप में positivity हो. This is the fourth point I would like you to write, that a leader should be enthusiastic, very positive and an inspiration, right? अब मान लो मैं पूरा स्पीच दे लूं and whatever happens, but आपकी लाइफ से कोई कनेक्टिंग पॉइंट ही नहीं है. विल यू फील इंस्पायर्ड? आपको इंस्पिरेशन होगी क्या? मतलब कि ऐसा लगेगा ना, सेशन में जबरदस्ती बुलाया है, एक सेशन है और फर्स्ट ईयर को बोला अटेंड करना है, सो वी आर देयर, राइट. सो अनलेस एज अ लीडर वी कैन कनेक्ट विद पीपल, वी कैन गाइड देम, राइट, एंड वी डोंट हैव द इंस्पिरेशन फैक्टर, तब तक क्या होगा, कोई भी आपसे कनेक्ट नहीं करेगा. इसका मतलब, इंस्पिरेशन का मतलब ये नहीं सिर्फ आउटसाइड कैरिज्मा. क्या होगा? दैट इज, जिसे आप बोलो, इट्स लाइक फॉल्स पॉलिश, राइट. इंटरनल मटेरियल इज नॉट चेंजिंग, दैट्स फॉल्स पॉलिश. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. दूसरा, एंटरप्रेन्योर्स लव रिस्क, राइट. फेल हो गए तो बस एंटरप्रेन्योर है, राइट. अरे बिल्कुल सब डूबा पड़ा है और बिल्कुल 10 साल हो गए, कुछ तरक्की नहीं हो रही, एंटरप्रेन्योर. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. एक सटल डिफरेंस होना चाहिए आपको, और ये आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी स्पिरिचुअल क्वेश्चन. इट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में फर्क क्या होता है. Actually, a person who is very sensible, who is practicing good things, he understands ये risk है, ये calculated risk है. Is it something, a lie which I am polishing the truth, or it's actually a truth that I am trying to do? और entrepreneurs are undisciplined. ऐसा कुछ नहीं है कि freedom है, कुछ है. Actually, जब पूरा दिन सब लोग काम कर लेते हैं, उसके बाद 4 घंटे आपको अपना एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है.
जैसे कई सारे बच्चों को मैं जानता हूँ कॉलेज में स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, राइट? अब तो जमाना बदल गया, पहले इट वाज वेरी डिफरेंट. नाउ पीपल डू स्टार्टअप विद इन द कॉलेज इटसेल्फ, राइट? थर्ड ईयर के पीपल एंड देयर गॉट फंडिंग, राइट? जब मैं अपनी लाइफ की पहली फंडिंग लेने के लिए हांगकांग गया, so my company was there and then there was another good friend of mine from IIT which were only in the third year itself, right? तो ऐसा भी मिथ नहीं है कि एज लिमिट है. अब मैं ब्लॉकचेन की फील्ड में भी साथ साथ काम कर रहा हूँ, वेब3 स्पेस में. I was reading a story about Instadapp, one of the top 10 protocols है Instadapp. जब जानते हो 19 और 20 साल के लड़कों ने इसको फाउंड करा, दो भाई हैं, सौम्यक जैन, तो दे फाउंड इट एक्चुअली when they were 19 to 20 years old. तो ये लिमिटेशन तो अप्लाई नहीं होती कि एज चाहिए, मेच्योरिटी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, दैट इज देयर. बट आपको इतना डिसिप्लिन होना चाहिए एंड व्हाट एज यू डेवलप इट इज ऑन यू. ऐसा नहीं है यू हैव टू बी अनडिसिप्लिन्ड, यू हैव टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पीपल. ठीक है, क्विकली देखते हैं स्टार्टअप, फिर एक मेन क्रक्स पे आएंगे. स्टार्टअप है क्या? एक स्टार्टअप एक कंपनी है जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है. सॉल्यूशन अभी फिक्स नहीं है, प्रोबेबल है, मतलब चांस है कि सॉल्यूशन आएगा. आप देखो इतने सारे स्टार्टअप से शुरू में पैसा उठाते हैं ना, जब तक उनका प्रोडक्ट बनता है चेंज हो जाता है. तो कई बार ना हम एज अ एंटरप्रेन्योर होते हैं, यार ये मेरा आइडिया बेस्ट है, nobody can criticize this idea, I'm going to shut all of the noise and I'm not going to listen to anybody. That's where most of the students and startups fail, because they don't understand you have to be open. और दो चीजें, एक है अभी स्टार्टअप आप कैसे बनाओगे. चलो एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, चेक पीपल आर अवेयर ऑफ नॉट. क्विकली लेट मी सी द पार्टिसिपेंट्स हु आर देयर. प्रांजल वर्मा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? प्रांजल, यू आर हियर? Pranjal, Bhargav, you guys are here? Anybody okay? Let me just take the voluntary one. अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि प्रोडक्ट बनाना है? तो किस नॉलेज से बनाओगे? अपने एक्सपीरियंस से बनाओगे, अपनी बुक्स से लेके बनाओगे, या कोई वीडियोस देख के बनाओगे? कैसे बनाओगे प्रोडक्ट का आइडिया? अगर आएगा तो कहाँ से आएगा? अगर आपके माइंड में यूजुअली जो आपको एक्सपोजर मिलता है. करेक्ट? एनी वॉलंटियर्स? So from the experience we have till now and by looking on our surroundings, which problem we are seeing that people face? ठीक है, वेरी गुड आरुषि. अभी आप क्या करोगे? यू विल ट्राई टू मेक समथिंग हाउ अपने एक्सपीरियंस से, अपने सेंसेस से जो आप देखते हो, आईज, ईयर्स, नोज, टच कर रहे हो किसी चीज को, अच्छा लग रहा है, या स्मेल कर रहे हो, राइट? करेक्ट, दैट्स हाउ विल गेज. फिर आप एक एनालिसिस करोगे खुद का कि यार आई फील पीपल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम. करेक्ट? ऐसे करोगे ना आरुषि? Yes sir. हाँ, यहाँ एक दिक्कत आती है. यूजुअली हमें लगता है कि ये सही तरीका है, इट्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट, बट एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करोगे ना स्टार्टअप में इसीलिए क्या लिखा है, स्टार्टअप इज अ कंपनी विद द सॉल्यूशन इज नॉट ऑब्वियस. हम इनिशियली इसको मान के चल सकते हैं लोगों को ये प्रॉब्लम, आप क्या करते हो उसका सॉल्यूशन भी बनाओगे. मैं एक बड़ा 3 स्टेज फ्रेमवर्क दूंगा आप लोग को. मैं आज तक अपनी लाइफ में 10 या 12 प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उसमें से 2 सक्सेसफुल हैं, अभी 10 नहीं हुए हैं, और 2 और पाइपलाइन में. बट मैं एक 3 थंब रूल फॉलो करता हूँ, अभी इसके बाद लिखवा रहा हूँ, एंड दैट इज माय गोल्डन रूल टू सी वेदर माय स्टार्टअप विल वर्क और नॉट इनिशियली. अब यहाँ पे आरुषि क्या दिक्कत आती है, जब हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बनाते हैं ना, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग छोड़ देते हैं कि डज द यूजर एक्चुअली वांट इट, या सिर्फ बोल रहा है, या बहुत सारे लोगों को ये चाहिए क्या, और चाहिए तो ठीक है लेकिन जब पैसा मांगने जाओ तो दे डोंट बाय. इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ 3 स्टेज फ्रेमवर्क. आप लोग लिख भी सकते हो, आई विल एनकरेज, आप लोग चैट पे लिख लो या कॉपी पेन पे लिख लो, ये हर जगह काम करता है. मेरी लाइफ का गोल्डन मंत्र है ये. 1, प्रॉब्लम वैलिडेशन. प्रॉब्लम वैलिडेशन का क्या मतलब है? पहले ये आइडेंटिफाई करना कि ये प्रॉब्लम मुझे लग रही है या आसपास और लोगों को भी है, या मैं किसी से एडवाइस लेके देखूं क्या डू दे फील द सेम. इसे बोलते हैं प्रॉब्लम वैलिडेशन ऑफ अ बिजनेस. सेकंड होता है मार्केट वैलिडेशन. पहला है प्रॉब्लम वैलिडेशन, सेकंड आइडिया अगर मैं अपना चला रहा हूं तो आई डू अ मार्केट वैलिडेशन. अब ये मार्केट वैलिडेशन क्या होता है? मार्केट वैलिडेशन का मीनिंग होता है आप चेक करोगे क्या मार्केट है, क्या इससे पहले किसी ने बेचा है, क्या लोग इसको चाहते भी हैं सर्वे करके, या अगर मैं लोगों को बोलूं कि यार मैं प्रोडक्ट इतने का दूंगा तो क्या वो लोग एग्री कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड मार्केट वैलिडेशन, कि यार इसकी मार्केट है, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, लोग इसके लिए पैसा देने के लिए तैयार है. थर्ड इज कॉल्ड सॉल्यूशन वैलिडेशन. जो मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं, क्या वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, या वो उसको पार्शियली सॉल्व कर रहा है, या फिर आज सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कल करेगा.
बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम वैलिडेशन, मार्केट वैलिडेशन, सॉल्यूशन वैलिडेशन। और सॉल्यूशन वैलिडेशन का फाइनल पार्ट, अगर मैंने सॉल्यूशन दिया तो क्या लोगों ने जिन्होंने बोला था पैसा देंगे, आर दे पेइंग इट? क्या उससे ज्यादा पैसा दे रहे हैं, क्या कम दे रहे हैं, क्या कल को और कुछ फीचर ऐड करूं तो विल दे बी एबल टू एग्री टू पे मी मोर? इससे बोलते हैं सॉल्यूशन वैलिडेशन। और एक स्टार्टअप में ये गारंटी नहीं होता है, कई बार ये मूविंग टारगेट होता है, कई सारे फैक्टर्स चेंज होते हैं, कभी रेगुलेशन से आपको चेंज आ सकता है। इसीलिए स्टार्टअप भी अगर आप लोग करना चाहोगे ना, बी प्रिपेयर्ड फॉर वन थिंग। हो सकता है आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन में निकलो, ट्राई करो और पता चले उसमें से कोई नई प्रॉब्लम निकल रही है विच इज एक्चुअली मोर ह्यूज यूज केस देन यू वर एक्चुअली इंटेंडेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए 3-4 रीजन है जिससे हमें स्टार्टअप नहीं करना चाहिए। इंस्पिरेशन है, बहुत अच्छी बात है, बट देयर आर फ्यू रीजंस फॉर विच आई वुड से ना कि स्टार्टअप मत करो। ठीक है, अभी के लिए, मतलब दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। इवन इफ यू स्टिल डू गुड टू मनी, पैसे ही पैसा, मतलब ऐसा है स्टार्टअप में जैसे हम एंटर करेंगे, व्हाट विल हैपन, कॉलेज गेट पे ही हमें स्वागत मिलेगा, फूलों का हार चढ़ेगा, एंड पीपल विल बी लाइक एंटरप्रेन्योर आए हैं, एंड देन 10 लाख की गड्डी हमारे हाथ में रखी जाएगी। ऐसा नहीं होता। It's been 7 years since I've been running my own startup officially. 2 साल पहले से I was trying to education and other things and trying to form idea चल रहा था, ideation का stage I started even before my graduation. But 2017 से I started my own startup. ठीक है, तब से लेके अब तक money sometimes have been very good, sometimes have been very low. So it's not a rain of money. ये कब आता है? It's almost after working so hard, sometimes being a destiny also. आपको नहीं पता आपका प्रोडक्ट आज चलेगा नहीं चलेगा, आपको कितनी बार पिवट करना पड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है ना फास्ट एटीएम कैश, एक आइडिया बनाया, किसी को पिच करा और 1.5 करोड़ की फंडिंग आ गई, बस लाइफ सेट है। दिस इज नॉट, अब तो रिसेशन विंटर चल रहा है, अब तो कोई ऐसी सलाह भी नहीं दे रहा। But actually, if you are in it just for the money, money is a byproduct of the solution you're going to provide people. आप बड़ी सर्विस दो, पैसा अपने आप आएगा। But if you just want कि पैसा जिसमें आ जाए और मैं वही करता रहूं, और उसको आप क्या करोगे, कैच ही करते रहते, आज जहां पैसा है कल वहां पैसा, दिस इज नॉट गुड। सेकंड, खुद का बॉस, फ्रीडम है ना। बच्चे हम किसी की क्यों सुने, मेरा स्टार्टअप, आई नो एवरीथिंग, है ना। कई बार होता है ना, एट द एज ऑफ 20 आई हैव नोन द एनसाइक्लोपीडिया, आई हैव नोन द विकिपीडिया। डोंट डू इट इफ यू फील यू आर मैच्योर इनफ। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। स्टिल अगर हम लोग कहीं फंसते हैं आज भी, आई टेक एडवाइस फ्रॉम माय पीयर्स, अदर कोलीग्स व्हिच आर वर्किंग इन देयर ओन स्टार्टअप्स, राइट, एंड पीपल हु कैन गाइड मी, सीनियर्स। आज तक ये लर्निंग प्रोसेस है। आई एम 30 नाउ, सो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस एट दिस स्टेज एज वेल। और मुझे नहीं लगता है लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म होगा। So although your post is the CEO, but सबसे ज्यादा काम और सबसे ज्यादा ह्यूमिलिटी आप ही को दिखानी पड़ती है। तीसरा, फेम, पोस्टर छपेंगे हर जगह। फेम comes to those who are actually successful and sometimes in very shortly. अगर आप आज का स्टार्टअप इकोसिस्टम देखो, द इकोनॉमी इज इन रिसेशन सम डेज, राइट। बायजूस का केस अगर आप देख रहे हो, huge success, FIFA was sponsored and other things. Now they're defaulting on some of the loans as well. So you have to identify fame. Sometimes it's just a byproduct and temporarily there. आपको दिन रात उठ के मेहनत करनी पड़ती है स्टार्टअप के लिए, और डबल मेहनत करनी पड़ती है एक बंदे को जो जॉब में होता है। अगर आपका एम्प्लॉय मतलब 6 घंटे कर रहा है, तो आपको क्या, आप 6 घंटे करो, आपको एफर्ट 12 घंटे वाला लगाना पड़ेगा। एफिशिएंसी 12 घंटे वाली होगी, है ना। और चौथा, कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, जब तक सेटल नहीं होते तो कुछ स्टार्टअप कर लेते हैं, लोगों को दिखाने के लिए हो जाएगा। These reasons are not going to lead well most of the time. आप 1% में आ गए तो अच्छी बात है, but 99% of the time it's going to fail. करेक्ट रीजन है कि ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, दिस इज द प्रॉब्लम आई वांट टू सॉल्व, एंड इट वुड मेक इंप्रूवमेंट इन द लाइफ ऑफ माय यूजर, कस्टमर और द पीपल। And good thing is I can make money out of it on the side, but the point is I might have to solve that problem. अब देखो, बहुत सारे स्टार्टअप्स ना एक्चुअली पैसा कमाते ही नहीं है, उसके बाद जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, उसका पैसा अपने आप आता है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपसे पूछता हूँ, सो आई सी कृपा, कृपा ऑन द अबव चैट। कृपा, आप व्हाट्सएप यूज करते हो? यस सर। इंस्टाग्राम चलाते हो? नहीं सर। अच्छा, फेसबुक चलाते हो? नहीं। अच्छा, व्हाट्सएप वालों ने आपसे 10 लाख रुपए चार्ज करे क्या व्हाट्सएप यूज करने के? ना। 100 रुपए तो चार्ज करे होंगे। नहीं 10 नहीं, रुपए? कोई चार्ज नहीं लगा। अच्छा, अमित, यूर हियर अमित?
Amit is there. Then let me see quickly. Akansha Kumari, here. Akansha. एक और बच्चा चाहिए मुझे. अर्जुन देखते हैं. अर्जुन. यस सर. आप YouTube चलाते हो? यस. हेलो. अच्छा, तो कितना चार्ज लेता है YouTube आपसे? प्रीमियम नहीं ले रखा करके. 25,000 महीना. सॉरी, आई एम नॉट अवेयर सर. हाँ, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ YouTube आपसे कितना पैसा लेता है YouTube चलाने का? क्या चार्ज लेता है आपसे? 25,000, 30,000 महीना? सर यूट्यूब इज फ्री. हाँ, यही तो है. आपसे लिया क्या अभी तक? इट्स फ्री राइट? नो सर. बट कंपनी तो बहुत बड़ी है, गूगल ने एक्वायर कर ली. सो हाउ आर दे एक्चुअली मेकिंग मनी? कैसे पैसा कमा रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट राइट? व्हाट्सएप कैसे पैसा कमा रहा है? पिचिंग यू, स्टडिंग योर बिहेवियर, डेटा है राइट? दैट इज व्हाट यू कैन पिच आउटसाइड एज वेल. तो व्हाट हैपेंस, अगर आप देखो, जरूरी नहीं है कि यू कैन टारगेट अ प्रॉफिट, और इसके लिए आपको डीप पॉकेट्स भी चाहिए. बट द आइडिया इज, आप में से कुछ लोग गेमर्स होंगे, डिस्कॉर्ड चलाते होंगे. द आइडिया इज यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर पीपल फर्स्ट, देन दे कैन यूज इट. आप आज जीमेल चलाते हो, आपको फ्री में मिलता है. आप गूगल ड्राइव यूज करते हो, इतना स्टोरेज फ्री में मिलता है. सब कुछ फ्री में बांट रहे हैं क्या? हैज गूगल सो मच मनी that all of you are getting 20 GB of the space free every time you create an account, and you're creating 20 spam accounts? No. So basically what they do is, first they solve your problem. आपको behaviorally addict बनाते हैं. And then what happens, they can sell your services. For example, हम अपनी कंपनी में G Suite use करते हैं. So we pay per account to them. Why? Because we are so habitual with the ecosystem they have created. आप Google Drive पे Google Doc बना लो, Google Sheet से integrate हो जाता है. Everything is so much in one place that they are able to make money out of it. So that is why the first thing to start a startup, आप लोग जो भी कर रहे हो, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करके यूजर को यूज कराना आपका प्रोडक्ट टारगेट होना चाहिए. बाकी सारे मेट्रिक्स सेकेंडरी. मार्केट सेकेंडरी है, पैसा कमाएगा नहीं कमाएगा सेकेंडरी है. द आइडियल थिंग इज द यूजर गोइंग टू यूज इट. अगर कोई यूजर यूज नहीं करने वाला है, देयर इज नो यूज ऑफ दैट एट ऑल. आज नहीं कल बंद हो जाएगा. और उसके बाद देखते हैं कि अब स्टार्टअप का आइडिया आ गया, सब कुछ हो गया. अब स्टार्टअप का रीजन भी पता चल गया, सर प्रॉब्लम सॉल्व कर. देन अब क्या करना चाहिए, राइट? सो दिस इज अ कोट फ्रॉम केविन ओराइली. लैरी एक्चुअली, ही वाज अ पार्ट ऑफ शार्क टैंक आल्सो. अगर आप लोगों ने शार्क टैंक यूएस वाला देखा, सो ही इज वन ऑफ द शार्क्स देयर. व्हाट वुड हैपन इफ अ बस स्टैम्प्स यू डाउन वन डे? एक दिन बस आ जाती है, और ऐसा ना हो, बट सपोज यू आर नॉट देयर, यू मेरे बिजनेस से आप चले गए. व्हाट विल हैपन? योर बिजनेस विल डाई. एंड आप हर चीज में बेस्ट नहीं होते. आप टेक्निकल हो सकते हो, आप मार्केटिंग हो सकते हो. यू कांट ऑलवेज बी अ वन मैन शो. इनिशियली हो सकता है, बट जैसे ही आप स्केल करोगे सिस्टम डाउन चलेगा. दैट्स व्हाई यू नीड पीपल. अब वो आपके को फाउंडर भी हो सकते हैं, वो आपकी टीम भी हो सकती है. दैट्स व्हाई यू नीड पीपल हु कैन कॉम्पनसेट योर स्ट्रेंथ. अब मुझे लगता है यार ये शीट बनाने में, या मेरी आर्ट बहुत खराब. अगर आप देखो, मेरा कलर कॉम्बिनेशन का अंडरस्टैंडिंग बहुत बुरा है. क्रिएटिविटी में, मैं रिटर्न क्रिएटिविटी में पोएट्री वगैरह लिखता हूँ, बाकी चीजें. बट अगर आप रिटर्न में एक लाइन बोलोगे ना सीधी खींचने के लिए, मैं नहीं खींच सकता. तो व्हाट हैपेंस, आई नीड पीपल हु कैन थिंक क्रिएटिवली. वाइब्रेंट कलर्स दे सकते हैं. आई एम वेरी सीरियस पर्सन, टेक बैकग्राउंड से रहा हूँ और बहुत ये की रहा हूँ, तो बस मेरे को वैसा बना आउटलुक पसंद है. बट हाउ विल अदर पीपल व्यू इट? आज का जनरेशन कैसे अट्रैक्ट होगा? हु विल नो, हु इज इनटू दैट जनरेशन, हु हैज डन इट वंस, राइट? That's why we need people around us. आप लोग को ऐसी चीजें ढूंढना. जैसे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, 4 स्टूडेंट का ग्रुप बन सकता है, राइट? एक वेब डेवलपर है, एक ऐप डेवलपर है, एक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन बना रहा है, या बैक एंड कोडिंग कर रहा है, उसके साथ इंटीग्रेशन, और एक बंदा मार्केटिंग कर रहा है, राइट? सो ट्राई टू फाइंड लॉयल पीपल हु कैन वर्क दिस आउट. बड़ा मुश्किल है, बट इट्स डूएबल, राइट? इट्स ऑलवेज स्टार्टअप का ना हर स्टेप लगता बहुत इजी है, बट इट्स ऑलवेज लाइक दैट. हाँ, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज आई टेक 10 मिनट्स. ये काफी थोड़ा सा लंबा है. ये मेरे पास आइडिया, मुझे क्या करना है, और उसके बाद अपने पे क्या काम करना है. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने पे क्या काम करना है. किसी का कुछ क्वेश्चन क्विकली विद इन 1 मिनट? ये तो लास्ट में भी ले सकता इनकेस सम. चल ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट और अवेटेड पार्ट ऑफ द सेशन. इतनी सारी कहानी 2 चीजों के लिए सुनाई गई. उसकी पहली चीज ये है, और इसके बाद सेकंड आई टॉक ऑन द एसक्यू पार्ट एज वेल. अब आइडिया आ गया सर. बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे को लगता है जेन्युइनली है. मेरे को गांव में ये प्रॉब्लम आती है, या शहरों में मैंने ये देखा है, एंड मुझे लगता है यहाँ पे एक गैप है जो मैं फिल कर सकता हूँ.
राइट? आप में से सबके पास कुछ आइडिया है, यू कैन थिंक अबाउट दैट आइडिया इन योर माइंड, बट सपोज वो आइडिया आ चुका है, अब सर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? आइडिया को रख के दिमाग में बंद कर देना है, और 4 साल बाद कोई स्टार्टअप निकले तो बोलना है ये आइडिया मुझे भी आया, ऐसे ही करना? या व्हाट शुड बी द नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप्स वी शुड डू? पहला है जो मैंने आपको बोला, 3 तरह का वैलिडेशन करो। सबसे पहले एनालिसिस करो, और वो करोगे कैसे, उससे बात करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम वैलिडेशन चलाओ, मार्केट वैलिडेशन करो और सोल्यूशन वैलिडेशन करो। इसको आइडेंटिफाई करो, ये आइडिया को समझ के पहले ग्राउंड पे चेक कर लो इसमें फिट भी हो रहा है पैरामीटर में, या सिर्फ सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन कुछ आइडिया नहीं है, एक प्रोजेक्ट है और प्रोडक्ट नहीं। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हमेशा अपने एम्प्लॉइज को समझाता हूँ, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। एआई के बहुत सारे स्टार्टअप आते हैं और बंद हो जाते हैं, ब्लॉकचेन के बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं और बंद हो रहे हैं। लोगों को प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट के बीच में रैपिंग करने का एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है। आप टेक्नोलॉजी बेच रहे हो या यूज केस का सोल्यूशन बेच रहे हो, दोनों में फर्क है। इससे पूरा थॉट प्रोसेस, इसकी पूरी ब्रांडिंग चेंज हो जाती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस वैलिडेशन, और उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी इतने साल हो गए उसके बाद भी लास्ट वीक वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बैंक का केवाईसी प्रोसेस होता है, राइट? जब भी आप लोगों ने बैंक अकाउंट खुलवाया हो या अपने पेरेंट्स का देखा हो, वो लोग आते हैं और हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड मांगते हैं, हमारा फिंगरप्रिंट लेते हैं, उसके बाद हमारा ओरिजिनल चेक करते हैं डॉक्यूमेंट का और चले जाते हैं। करेक्ट? ऐसा ही होता है, पॉलिसी कराना हो, कुछ कराना हो। तो पहले मैं ये समझना चाह रहा था बैंक क्या करता है, केवाईसी के कुछ एपीआईज भी खरीदता है, जिससे आपको पता चले कि ये पैन कार्ड तो वैलिड है इस बंदे का, लेकिन इसमें कुछ डिटेल्स चेंज हो चुकी हैं, जो कि आप ओरिजिनल देख रहे हो वो लेटेस्ट नहीं, डिटेल्स में कुछ चेंज है, हाउस एड्रेस का चेंज हो सकता है, आपने कुछ और चेंज करवाया हो सकता है। तो देयर इज अ चेन, वो कई बार डिटेक्ट नहीं कर पाते आप लोग। तो क्या होता है, वो लोग सिर्फ ऐसे देखते हैं बस, हाँ, और चले जाते हैं, हाँ बस यही लग रहा है, ओरिजिनल लग रहा है, बस ठीक है। तो बैंक्स यूज केवाईसी। एंड उसके अलावा मैं जानना चाह रहा था कि बैंक्स तो अपने आप में बहुत सॉलिड है, उनके पास पैसा है, उनके पास इतनी मैनेजमेंट है और डिसीजन लेना इतना मुश्किल है, तो बैंक और एक स्टार्टअप कहाँ से कोलैबोरेट कर सकते हैं आपस में, हाउ दे कैन एसोसिएट? तो आई वेंट स्ट्रेट टू द बैंक मैनेजर, आई न्यू देम बिकॉज ऑफ माय अकाउंट, सो आई सैट विद देम फॉर 1 hour एंड बैक एंड फोर्थ हम बात कर रहे थे। आई कॉल्ड देयर एजेंट्स आल्सो फॉर इंटरव्यू एंड अदर थिंग्स। अब ये पूरा प्रोसेस मैं क्यों समझा रहा हूँ, नो योर कस्टमर, हु इज योर कस्टमर, ये समझना जरूरी है, उनको क्या नीड है। और आप मानोगे उनका एक इकोसिस्टम पेज है बियॉन्ड बैंकिंग करके, मेरे बैंक का, वेयर दे लिस्ट द स्टार्टअप्स फॉर फ्री। आप उनको अपना स्टोरी बताओ, पोर्टफोलियो बताओ, उनको लगता है कि ये बैंकिंग कस्टमर्स के लिए ऐसी कोई सर्विस है जो बैंकिंग कस्टमर या प्रोडक्ट वाले को चाहिए, दे लिस्ट यू फॉर फ्री। अब इतना बड़ा मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का पता ही नहीं, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई हु इज योर कस्टमर। फिजिकली मिल सको बहुत बढ़िया, सर्वे कर सको बहुत बढ़िया, अगर कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो उनसे कंसेंट मांगो, उनको बोलो कि हम ये रिकॉर्डिंग को यूज करेंगे तो लीगली मांगो। अदरवाइज ऑनलाइन सर्वे फॉर्म्स है। सबसे पहली बात कस्टमर की सुनो, उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, आइडिया वहीं समझ आ जाएगा। 90% ऑफ योर क्लैरिटी विल कम व्हेन यू पिच टू 200 पीपल। और आपको ना अपना आइडिया पिच करना भी आएगा, रिफाइन करना। आपके माइंड में तो वो ऐसा फेरी टेल आइडिया, बट व्हाट हैपेंस जब ग्राउंड में जाते लोग कहते हैं ये तो ठीक है, समझ नहीं आया, राइट, समझ नहीं आया, यू आर लाइक अरे इतना सब बताया, इतना एडवांस आइडिया, धूम मचा देगा, आग लगा देगा, समझ नहीं आया। ये की पॉइंट है, उसको समझ कैसे आए ऐसे बेचो। अगर आप देखोगे ना, एप्पल जब अपने प्रोडक्ट्स बेचता था, सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड 5Ws, एक टेक टॉक, ये वेरी फेमस टेक टॉक। जब एप्पल अपने प्रोडक्ट बेचता है ना, तो ऐसा नहीं कहता बेस्ट कंप्यूटर, आग लगा देंगे, बेस्ट है, सब कुछ हमारे पास ही वर्ल्ड में टेक है। जस्ट से आजकल इंडिया में तो खासकर इमोशंस पे होता है। एप्पल वाज लाइक we build businesses and we just happen to make computers। मतलब आपको बिजनेसेस बनाते हैं या आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देते हैं, बस कंप्यूटर बनाना तो हमारा साइड काम है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ चेंजिंग योर लाइफ। तो दोनों पिच में बहुत डिफरेंट है। तो ये चीज अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने ब्रांड देखते हो आसपास, जैसे मैंने बताया यूट्यूब, व्हाई आर दे एडवर्टाइजिंग? फेसबुक की पहले ऐड आती थी कि एक कैंपेन चलाओ, एक दीदी है बिल्कुल वो स्वीट शॉप चला रही है, एंड शी इज हेल्पिंग पीपल एंड स्प्रेड द वर्ड, because they want to tap the use case. So when you build your startup, one of the most important things is identify pitch क्या करने वाले। Are you selling a technology? Are you selling the use case actually? That will help you understand your customers. दूसरा, avoid competition। सेम चीज कॉपी करके इनिशियली हो सकता है आपको ट्रैक्शन मिले, sometimes we do it as well, but you have to identify what will be the unique identifier।
मार्केट में क्या बिक रहा है, आप क्या बेचने वाले हो, और कल को अगर किसी और को आपको कॉपी करना है, व्हाट इज द बैरियर। सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, गो फॉर मोनोपोली। मोनोपोली का क्या मतलब होता है, ट्राई टू फॉर्म अ नीश मार्केट, इसको ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के अगर आप वीडियोस देखोगे, यू नो आई फॉलो हिम अ लॉट, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक वीडियो है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, और ये उन्होंने तब बनाया था व्हेन जियो केम इनटू पिक्चर, राइट। अभी तो इंटरनेट के मोबाइल चार्जेस बिल्कुल लाइट हो गए। पहले 250 रुपए का 1 GB इंटरनेट डलवाना पड़ता था, 3G, ये महंगा, और 2G एयरसेल का सिम डालना पड़ता था जस्ट टू हैव दैट मच ऑफ डेटा, और डेटा बड़ा बचा बचा के चलना पड़ता था। अब तो ऐसा है, डेटा का रिचार्ज, फोन कॉलिंग, एवरीथिंग सो चीप। So what happens? They created a new market and went for a monopoly. बाकी लोगों ने फिर कैच करके क्या करा? Airtel has lowered their prices. Airtel has merged now with Voda. Voda Idea, sorry, Voda and Idea merged. And then what you have is Aircel बंद हो गया. What कम providers बचे? So what happens is go for monopoly. Similarly, they are doing in the other sites as well. So एक niche को identify कर लो कि मैं ऐसे करना चाहता हूँ. इसे blue ocean strategy बोलता है. You can check out his video as well. And the other thing, 2 साल तक वेट मत करो पूरा प्रोडक्ट बने। एक पेज भी बन गया ना जो सेंस बनाता है, उसको कस्टमर के पास लेके जाओ, फीडबैक लो, लर्न करो, डिजाइन करो, दोबारा फिर बनाओ, फिर प्रोडक्शन में डालो, फिर फीडबैक लो, और ये लूप चलाते रहो जब तक आपका प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होता। इसकी चाहो तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पीपीटी स्लाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्ड समथिंग वेरी क्विकली, इसे स्टार्टअप की लैंग्वेज में बोलते हैं MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। जो पूरा प्रोडक्ट नहीं है बट एक मिनिमल यूजर है, काम चला हुआ है बट चल रहा है, काम चला हुआ है बट चल रहा है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट ये बनाओ। आपकी ऐप है, जैसे कोई एक होम पेज बना दो उसका सिंपल सा कि यार ये ऐसा ऐसा करेगी, या एक ऐसा ऐसा आइडिया, ये फंक्शनैलिटी दिखा दो। 10 फंक्शनैलिटी होनी है, टेस्ट आउट द फर्स्ट फंक्शनैलिटी विद पीपल, टेक देयर फीडबैक, हाउ आर दे लुकिंग एंड फीलिंग, आर दे अंडरस्टैंडिंग द आइडिया विद दिस, टेक दैट फीडबैक। फिर लास्ट चीज इक्विटी स्प्लिट, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये सब तो हो गया, बट एक स्टार्टअप को और क्या क्या चाहिए। इक्विटी स्प्लिट, इसकी आप लोग स्लाइड ले सकते हो, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि यार देखो, जब आपकी टीम है एंड यू प्रॉमिस देम कि आई एम गोइंग टू गिव यू 25% ऑफ माय कंपनी, तो क्या आप उनको पहले दिन दे दोगे, या फिर द बेटर आइडिया इज टू वेस्ट, VEST, इसको बोलते हैं वेस्ट योर शेयर्स। बेसिकली क्या है कि हो सकता है आपके साथ आपके फ्रेंड्स आज काम कर रहे हैं, यू वांट हम 5 लोग हैं, 20% के होल्डर्स हैं, सो द आइडिया इज नेवर हैव द शेयर्स इवन विद यू, राइट। व्हाट शुड हैपन इज आप 3 या 4 साल वेस्टिंग करो। इसका क्या मतलब होता है, आप 1 साल बाद आपको उसका कुछ परसेंटेज मिलेगा, फिर सेकंड ईयर में कुछ परसेंटेज मिलेगा, ऐसे 4 साल तक आपको आपके पूरे शेयर्स मिलते हैं। एक एग्जांपल होगा। एक होता है वेस्टिंग विद क्लिफ, कि पहला साल कुछ नहीं मिलेगा, पहला साल कंप्लीट करने के बाद शेयर मिलेंगे। ऐसा नहीं पहले साल के स्टार्टिंग में मिलेंगे, आपको 1 साल कंप्लीट करने के बाद मिलेंगे, उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा। इसे बोलते हैं क्लिफ। इसका क्या मतलब है, इससे क्या इंश्योर होता है कि ऐसा नहीं जिसने आपको शेयर दे रखे हैं कंपनी में आपने किसी को, सो दे जस्ट गेट द शेयर, सेल देम ऑफ एंड रन अवे। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसलिए डाला, आई यूजुअली डोंट टच इट, कि कल को आप लीगल एस्पेक्ट में थोड़ा मेच्योरली सोच के चलो, अदरवाइज व्हाट यूजुअली हैपेंस इज देयर कैन बी अ लॉट ऑफ फाइट्स। अब ये सारी कहानी होगी, इसमें कुछ क्वेश्चन है किसी का? वेरी क्विकली आई विल टेक 1 or 2 क्वेश्चंस एंड देन आई विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एक स्टार्टअप में सबसे मुश्किल काम है क्या? श्रेयांश, यू वांट टू आस्क समथिंग? No, sir. ओके, सो एक चीज आप देखते हैं, इतना सब स्टोरी चला ली, और आप देखो एक एंटरप्रेन्योर को प्लानिंग भी करना है, उसको आइडिया भी चलाना है, उसको कस्टमर के पास भी जाना है, उसके बाद उसको बिल्ड भी करना है, शिप करना है, चेंज करना है, और फिर इन्वेस्टर के पास फंडिंग के लिए भी जाना है। आपको क्या लगता है पूरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का सबसे डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स क्या होंगे? Raising funds. रेजिंग फंड्स एक आरुषि के हिसाब से, और मार्केटिंग, Plan for proper execution. अच्छा, प्लान, प्रॉपर एग्जीक्यूशन, मार्केटिंग, और अभी आप लोगों ने स्टार्टअप कर नहीं, इसका मतलब है नेचुरली अभी तो नहीं करा होगा। 1 or 2 more आंसर्स क्विकली, फिर हम इस पे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वेकअप हो जाए। Having a great team. Having a great team, ये भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, बट इट्स नॉट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट। 2 चीजें बताता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट। बिल्डिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट आउट ऑफ द MVP। नहीं युवराज, ये भी मुश्किल नहीं है, प्रोडक्ट समझ आ गया, बन जाता है। मैं बताता हूँ, इसमें सबसे आप लोग हिट सही डायरेक्शन में जा रहे हो,
इसका की एक कॉमन फैक्टर है, सबसे मुश्किल काम पहले स्टार्टअप में सबसे पहली चीज दूसरे से काम करवाना। अभी आप करवा के देखो, राइट? आप लीडर हो, यू गिव द टास्क टू समवन, आप उसको बोलो क्योंकि क्या होता है, आप उतने पैशन और इंथुजियाज्म से काम कर रहे हो, दूसरा वाला क्लिक नहीं कर पा रहा है, जस्ट दे आर ट्राइंग, लाइक सब कुछ तो कर रहा हूँ, दिख रहा है गलत कर रहा है, एंड दे आर समटाइम लाइंग आल्सो। एक सबसे मुश्किल काम होता है दूसरे से काम करवाना। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, बिकॉज सेकंड सबसे डिफिकल्ट चीज स्टार्टअप के लिए क्या हो सकती है? बताओ, चलो मैं ही बताता हूँ, काफी सारे आंसर्स आप लोगों ने दे दिए। आप चलो पूर्वांशी आप बताओ कोई एक और डिफरेंट एस्पेक्ट, देन आई विल कैच। क्या और मुश्किल हो सकता है? प्रोडक्ट इम्प्रोवाइजेशन। हाँ, प्रोडक्ट इम्प्रोवाइजेशन पता ही चल गया तो हो जाएगी। सेकंड सबसे डिफिकल्ट काम क्या होता है ना, अगर आप सर सर फीडबैक कलेक्ट करना, फीडबैक कलेक्ट करना भी मुश्किल नहीं है। मैं मतलब आपको ना ऑनेस्ट एग्जांपल, फीडबैक। मैं शेयर मार्केट का एग्जांपल देता हूँ आप लोग को, उससे समझ आएगा। आप जब शेयर मार्केट की कोई ट्रेडिंग या ट्यूटोरियल्स देखोगे ना, तो पहले चलेगा ये ट्रेडिंग ऐसे सीख लो, ऐसे कोडिंग कर लो, ऐसे एडवांटेज ले लो, और 1 या 2 साल बाद जब आपको इंडिकेटर और बाकी चीजें समझ आ जाती है, जानते हो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज सबसे क्या बताते हैं? वो ये नहीं कहते सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर मार्केट में क्या है, टू लर्न टेक्निक्स एंड ये सब। They say one of the most difficult things is controlling yourself and controlling your own nerves. जब आप स्टार्टअप करते हो, आपको क्या लगता है स्टार्टअप कितनी बारी अप डाउन जाएगा? 2 साल बाद आपको लगता है, मान लो आज आपने स्टार्टअप करा एंड यू आर हैविंग अनदर पर्सन विद यू, और 1 साल एक्स्ट्रा लग रहा है स्टार्टअप को चलने में, कि यार 2 साल का 2.5 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा। हाउ मच विल बी द मोरल ऑफ पीपल अराउंड यू? दे विल से सर जॉब लग गया, सर ऐसा हो गया, सर ये मजबूरी आ गया। So what will happen? You will be a lot of times alone, under a lot of stress, और उसको आपको कंट्रोल भी करना है, दूसरे को मोटिवेट भी करना है, पैसा भी पूरा नहीं है आपके पास, एंड यू स्टिल हैव टू कीप देम अप, जब आए तो रिवॉर्ड भी करो। सो पहला सबसे मुश्किल काम होता है दूसरे से काम कराना। सेकंड सबसे मुश्किल काम होता है खुद को कंट्रोल कर पाना और खुद को संभाल पाना। आप में से कितने लोगों को लगता है अगर मैं बोलूं ऐसा प्लान आपको ब्लूप्रिंट बना के दे दूं, ऐसा है स्टार्टअप स्टार्ट करना है, उसके बाद 1 साल तक आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, जितना फ्रीलांसिंग से कमाओगे उसमें से 1,000 रुपया बचेगा, उसमें आपको चाय पानी पीना है, खाना है, ट्रैवल करना, सब कुछ इसी में फिट करना है, और दूसरा बंदा सैलरी लेने बैठा हुआ है कि 3,000 में उसको रखा हुआ, उसको देना। सोचो अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? एम्प्लॉय कितना कमा रहा है? 3,000। आप कितना कमा रहे हो? आ तो 1,000 रहा है, लेकिन उसमें खर्चा पानी भी नहीं निकलता। So one of the most difficult things is to have self discipline, self management. आप खुद पे काम नहीं करोगे ना, सीड कौन डाल रहा है स्टार्टअप का? आप लोग डाल रहे हो। अगर आप खुद पे काम नहीं करोगे ना, ये सब शेक कर देगा। ये मार्केटिंग कौन चलाने वाला है? आपको देखना है। आपको अगर आप ही काम नहीं होगे, कैसे आप आइडिया को चलाओगे? अगर आप जिद पकड़ लोगे यही प्रोडक्ट बनेगा, कस्टमर को कुछ नहीं पता, इट कैन नेवर फॉर्म। एज ए लीडर, तो मैंने सबसे पहली चीज आपको स्टार्टिंग में बोली थी, एज ए लीडर यू हैव टू बी वेरी, टू लीड, इंस्पायर। और क्या बोलते हैं, भगवत गीता मुझे बहुत पसंद है, मैनुअल ऑफ लाइफ है पूरी। भगवत में गीता में एक बात बोलते हैं, यत यत आचरिष्ट श्रेष्ठास। इसका मीनिंग जानता है कोई? इसका मीनिंग क्या? आचरिष्ट श्रेष्ठास, लोग फॉलो करते हैं क्या? किसको फॉलो करते हैं? कुछ आइडिया समझ आया इससे? चलो पढ़ना चाहिए। ग्रेट वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू इन लाइफ इज टू get the manual of life and read how to. तो यत आश्रय श्रेष्ठास का मीनिंग होता है, you have to be an exemplary leader. You have to be what? You have to be an exemplary leader. इसको मैं होलिस्टिक डेवलपमेंट में अगर आप देखो, एक लीडर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अगर मैं पूछूं आरुषि, अभिषेक, अमित, आशु, व्हाट शुड बी द गौरव, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आप कैसे इंप्रेस होगे? मान लो एक लीडर को देखते हो, यू सी समवन, आप उनकी किस क्वालिटी से इंप्रेस होगे? और कैटेगरी उसको हम कैटेगराइज करेंगे क्विकली। देखो सेशन बच्चे नहीं बोलते ना, फिर मेरा सेशन ऐसा लगता है मुझे कि मोनोलॉग करके बस स्लाइड चला के बंद कर दो। सर जो अप्स एंड डाउन्स को सह सके। बहुत अच्छी बात है, जो हमें लीड कर सके अप्स एंड डाउन्स में, राइट? उस डिटरमाइन खड़ा है। वेरी नाइस। ओके, रूपा दोबारा भले ही डाउनफॉल होता है, भले ही टीम वर्क नहीं कर पा रही है, बट स्टिल
मोटिवेशन हाई रख के उनको एनर्जेटिक करा सके। बूस्ट करे टीम को, करेक्ट है ना, टीम को हाँ बूस्ट कर करेक्ट। सके। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है हनुमान जी जब लंका पे जाते हैं सब हताश हो वही लंका पार करेंगे, ऐसा लग रहा है। मैंने अभी देखा था कहीं पे न्यूज़ में तो आया। तो देखो दो चीजें हैं एक लीडर में बहुत इंपॉर्टेंट, एक कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, काम करना आना भी चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ लीडर में साथियों तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूँ, राइट, ऐसे होता है ना पूरे जंग पे सबको भेज दिया और खुद सबसे पीछे बैठे। अगर आप देखो एंशियंट टाइम में क्या होता था, लीडर खुद आगे जाके लड़ता था कि मैं सबसे बड़ा वॉरियर हूँ एंड देन यू सपोर्ट। आजकल लोग कहते हैं तुम आगे जाओ मैं पीछे बैठा हूँ। सो वन इज कॉम्पिटेंस, उसको खुद भी आना चाहिए, उसको खुद का नॉलेज होना चाहिए और उसको लर्निंग एबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं होता, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। सेकेंड चीज है उसका कैरेक्टर, जो आप सब लोग बोल रहे हैं। एक लीडर में उसका कैरेक्टर दिखता है, राइट। आप गलती भी करते हो कई बार प्यार से बोलता है आगे से मत करना, या आपकी भी कंपनी है, टू सपोर्ट इट एंड यू गेट मोटिवेटेड, उसके लिए आप जान लगा दोगे। और कोई 1000 रुपए एक्स्ट्रा देगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप लगा दोगे ना मेरा काम था डिजर्व करता था मिला। समटाइम्स वी थ्राइव टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय पीपल हु हैव सच हाई। ये वो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस कैसे मिल रही है, अभी आप आईआईटी में पढ़ रहे हो, राइट, फिर स्टडिंग फ्रॉम द अदर प्लेसेस, रेफरेंसेस आल्सो, आप यूट्यूब पे देख रहे हो, लोगों से मिल सकते हो सीखने के लिए, कॉम्पिटेंस मिलता है। ये कैरेक्टर कैसे बनता है, कैरेक्टर को कैसे ट्रेन कर सकते हो, इसका भी मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताया। गिविंग क्रेडिट, अगर कुछ अच्छा हुआ तो क्रेडिट पूरे टीम को जाएगा, और अगर इनकेस मैंने फेलियर कैरेक्टर की फेस ट्रेनिंग कैसे करोगे, अपने कैरेक्टर को ट्रेन कैसे करोगे, ये तो हो गया ऐसे करना चाहिए कि अच्छे कैरेक्टर वाले आदमी। अब यू ट्रेन योर कैरेक्टर, कैसे पता चलेगा, अपने आप को कैसे कंट्रोल करोगे। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने सेशंस लेता हूँ ना जब कॉलेजेस से, अभी एक यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए लिया, तो मैं फर्स्ट स्टूडेंट जो बेचारा फर्स्ट रो में बैठा होता है उसको ऐसे करता, सुनो इधर आओ, व्हाट विल हैपन इज यू गेट शेक हो जाएगा, है ना। पहले हम लोग पढ़ते थे जब गूगल वर्क प्लेस इंपॉर्टेंट था, तो गूगल ये ना स्ट्रेस टेस्ट लेता है। स्ट्रेस टेस्ट क्या है कि आप अपने इमोशन कैसे कंट्रोल कर सकते हो। जब मैं बात कर रहा हूँ ना कैरेक्टर की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर जो मेंटेनेबल हो। मेंटेनेबल मतलब ऐसा नहीं अच्छे टाइम पे अच्छा चल रहा है लेकिन किसी ने दो गाली दी तो वहां लड़ने बैठ, करेक्ट। आपको अपना पेशेंस, अपना मेंटल पीस बना के रखना। जैसे एग्जांपल लो, आपके प्रोडक्ट की मीटिंग है, राइट, और 5 मिनट पहले आपकी किसी ने कॉलर पकड़ के लड़ाई हो गया, अरे मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, अरे मैं इसको बुला लूंगा, व्हाट विल हैपन, इट विल बी अ टेस्ट ऑफ योर कैरेक्टर इन दैट। नहीं, तब क्या प्रोडक्ट याद आएगा कि लड़ाई याद आएगी और लोगों को बुलाना याद आएगा, और ऐसा लगेगा फटाफट मीटिंग खत्म हो तो जाके पकड़ो, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। सो यहाँ पे क्या होता है, एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, मैंने भगवत गीता का एग्जाम्पल लिया, इज टू बिल्ड योर स्पिरिचुअल क्वेश्चन। स्पिरिचुअल क्वेश्चन से क्या होता है, आपकी इमोशनल क्वेश्चन बढ़ता है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है। कॉम्पिटेंस आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका आईक्यू। आपका आईक्यू क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, लेकिन उस एबिलिटी को यूज भी तो कर पाओ। ऐसा होता है ना कि वो बंदे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, ओहो उस टाइम में स्ट्रेस में आ गया था, एग्जाम में सब कुछ आता था लेकिन फोकस नहीं कर पाया। ये फोकस आपको एक एंटरप्रेन्योर को मैं बताऊं एक दिन नहीं करना, यू हैव टू वेक अप एवरी डे इन द मॉर्निंग, रीफोकस स्टार्ट, रीसेट रीफोकस स्टार्ट। आप एक मशीन की तरह यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, कि आप लूज नहीं कर सकते। देयर विल बी गुड एंड बैड डेज, ह्यूमन ऑफ कोर्स, अच्छे बुरे दिन आएंगे, बट यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। यहाँ पे आपका सेल्फ डिसिप्लिन, आपकी गुड एसोसिएशन, आपकी गुड एबिलिटी यहाँ पे काम आती है। एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू दैट इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन, उसको बढ़ाना जरूरी है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आजकल मेडिटेशन के लिए आप बोलते हो एडवाइस होता है, राइट, इतना स्ट्रेस है कैसे करें, लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, सब कुछ फिंगर टिप्स पे आ गया, हाउ कैन यू कीप योर माइंड काम। माइंड ऐसे भाग रहा होता है, इधर भाग उधर भाग, अभी बात कर रहे हैं तो सेशन में होगा, फिर मून पे पहुंच जाएगा, फिर वापस आ जाएगा मून से, लाइट की स्पीड से आया तो माइंड चल रहा होता है। और इतने सारे डिस्ट्रैक्शन, स्टार्टअप में प्रेशर है, अब एम्प्लॉय को थोड़ी पता फंडिंग का क्रंच है, या वो बोल रहे हैं सर क्रंच है तो सब बोल, उसको पता है इसका एंटरप्रेन्योर को कि कैसे नेक्स्ट मंथ आना है, कैसे सेविंग आ रहा है, वहां पेमेंट रुक गई है। इट्स लाइक अनस्टॉपेबल, इतना मतलब ऐसे होता है कि इट्स लाइक यू फील द बर्डन ऑन योर शोल्डर्स। और इसमें हाउ कैन यू मेंटेन अ ग्रेट कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस, दैट्स बाय बिल्डिंग योर स्पिरिचुअल क्वेश्चंस। आप भगवत गीता पढ़ सकते हो, अच्छा एसोसिएशन ले सकते हो, यू कैन हैव सोनिक मेडिटेशन, आप सोनिक मेडिटेशन कर सकते हो, इसके बहुत सारे सेशंस होते हैं। ओवरऑल यू विल रियलाइज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ना एक स्टार्टअप में होता है, पहले आप खुद पे काम करो,
पहले आप रेडी हो जाओ स्टार्टअप की जर्नी के लिए। ऐसा नहीं है हाफ हार्टेडली 1 साल करा और चला नहीं और टाटा। नहीं लग रहा, अगर आपको पता है कि मैंने आइडिया लिया फेल हो गया, वेल एंड फेयर, लेकिन ट्राई क्या आपने 100% किया? क्या होता है सिर्फ स्टार्टअप नहीं, लाइफ के हर एस्पेक्ट में हम क्या गलती करते हैं, हम हाफ हार्टेड एफर्ट दे रहे होते हैं। यूपीएससी के बच्चे जब तैयारी करते हैं तो आई टेक द सेशन एंड टेल देम कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, वी आर स्टडीिंग 4 hours बट वी आर नॉट एबल टू स्टे फोकस्ड फॉर 4 hours। माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको, फिजिकली आप फिट नहीं हो, बिल्कुल ऐसे छोले भटूरे खा के लस्सी पी के आप बैठे हुए हो, हाउ विल यू गेट द नॉलेज टू सिट देयर? तो 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस पिलर पे, हम लोग बोलते हैं आगे सेशन में you must take those sessions for secret of success and others, they're very very important, मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहे। इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ विच इज मंत्रा। आप लोग इसको लिख सकते हो, मंत्रा ये लाइफ का मेरी। आपको अपने पीक्यू पे काम करना है। अब मैंने अपनी हेल्थ पे काम करना स्टार्ट करा है, मैंने शुगर काफी अवॉइड करनी स्टार्ट करी है, एज जैसे चेंज हो रही है, कोलेस्ट्रॉल पे काम करा है, मेरे कुछ थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, नाउ इट्स नॉर्मल। फिजिकल क्वेश्चन, आपको अपने फिजिकल क्वेश्चन पे काम करना है, यू हैव टू स्टे फिट। तो सब बातें चल रही हैं और नींद आ जाएगा या बिल्कुल बॉडी अनफिट है तो जरूरत नहीं। सेकंड, आपको अपने आईक्यू पे काम करना है, आपको अपनी कॉन्फिडेंस पे काम करना है, और कॉन्फिडेंस आपको अपनी स्टडीज भी करनी है, साइड में एक्स्ट्रा थिंग्स यू हैव टू स्टडी फॉर योर स्टार्टअप आल्सो। तीसरा, आपको अपने ईक्यू पे काम करना है, इमोशनल क्वेश्चन पे। जितनी मर्जी इंटेलिजेंस हो, जितनी मर्जी नॉलेज हो, सोचो मीटिंग से 5 मिनट पहले किसी ने लड़ाई कर ली, आपका माइंड बिल्कुल फ्लश हो गया, यू लूज द प्लॉट। पर ऐसा लाइफ में एक बार नहीं होगा, लाइफ आपको पूरा दिन, मतलब once every 3-4 months there will be some up and down, right? आप अपनी फैमिलीज में देखते हो, not every day is same, right? There are ups and downs। इमोशनल क्वेश्चन पे काम करना, अब ये सब कैसे कंट्रोल होगा, राइट? माइंड तो भागता रहता है, इमोशन तो आते ही रहते हैं, सर अंदर से पता है करना भी है ना? मैं एग्जांपल ले रहा था गीता का, तो एक छोटा सा एग्जांपल और बोलता हूँ बिफोर वी। अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को कि आई कैन कंट्रोल द विंड बट आई कैन नॉट कंट्रोल द माइंड। चंचलम ही मना कृष्णा, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है भगवत गीता का, 6th चैप्टर। ऐसे लग रहा है अर्जुन बस मेरे से पूछ के गए हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्या तुम्हारे क्वेश्चन है, होता है मैं पूछा हूँ तुम्हारे क्वेश्चन से। इज जस्ट आस्किंग लाइक दैट कि माइंड इज सो फ्रेजाइल, इट्स रनिंग एवरीवेयर, आई कैन कंट्रोल द विंड, इतने बड़े वॉरियर है, बट इसे आई कैन कंट्रोल द विंड, आई कैन नॉट कंट्रोल द माइंड, ये मेरे से कंट्रोल नहीं हो सकता। बट कृष्णा सेज इन द नेक्स्ट श्लोक, ये मतलब अभ्यास है ना, टू कॉन्ट्रोल विद प्रैक्टिस इट कैन बी पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। और उसके बाद माइंड अगर आप देखो, अभी इतना यंग एज होता है, कई बार हमें पता होता है गलत कर रहे हैं, राइट? जैसे एग्जांपल भी एग्जाम्स का एग्जांपल लेते हैं हम लोग कई बार, स्टार्टअप का ही टॉपिक है, बट आई एम जस्ट सेइंग सेल्फ डिसिप्लिन। मुझे पता है मुझे 3 घंटे अपने स्टार्टअप पे काम करना है, 3 घंटे 4 घंटे अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, बाकी रेस्ट करना है, और डेली शेड्यूल इसको मेंटेन करके रखना है। लेकिन क्या होता है, 1 घंटा स्टार्टअप पे काम होता है, 2 घंटे एग्जाम की तैयारी होती है, 5 घंटे सीजन देखते हैं। अर्जुन भी कह रहे हैं, ऐसा लगता है कुछ जबरदस्ती मुझसे गलत काम करवा रहा है, एंड वी कैन नॉट कंट्रोल। और यही छोटी छोटी चीजें ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन डिफाइन करता है। तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्यों काम करता है? बिकॉज ये आपको बताता है क्या आपको सिचुएशन में होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ईक्यू का क्या मतलब है, सिचुएशन आ गई, अब आप रिएक्ट कर रहे हो। एसक्यू कह रहा है उसको अवॉइड ही कर दो, वाई टू गो। उसके लिए मैंने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था स्टार्टिंग में, गुड एसोसिएशन। ये एसक्यू आपको चूज करने में मदद करता है। तो डेफिनेटली ये स्टार्टअप का एक जो जर्नी है, ये 1 घंटे में कुछ भी नहीं हो सकता, तो 6-7 घंटे आइडियाज कैसे करें वो चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे उठाएं, बहुत सारी। बट आई जस्ट एनकरेज यू कि आप आगे के सेशंस अटेंड करो विच आर अ लॉट फोकस्ड ऑन योर कैरेक्टर एंड कॉन्फिडेंस, राइट? क्योंकि देखो स्टार्टअप का आइडिया आपको कब स्ट्राइक करेगा, आज भी कर सकता है, 4 साल 5 साल बाद भी कर सकता है, बट टू हैव द टूल्स, राइट? अगर जंग लगने वाली है, पता है आज हो चाहे कल हो चाहे 10 साल बाद, you have your weapons ready, right? Time to get to equip them। तो कैरेक्टर और कॉन्फिडेंस पे काम करना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक ये सेशंस जो हैं, आगे भी एक हमारी सीरीज है, आई थिंक आशुतोष कैन शेयर विद यू द फॉर्म्स एंड एवरीथिंग। आप अटेंडेंस भरिए एंड यू विल रिसीव दैट, इट इज वेरी यूजफुल। और आप सोच भी नहीं सकते इतने बारीकी के पॉइंट्स पे बात करते हैं, राइट? जैसे इतने सालों के बाद आपने सोचा होगा, मैंने भी नहीं सोचा था जब स्टार्टअप किया था, कि इतने सालों के बाद मेरे लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे मुश्किल क्या निकल के आएंगे, एक खुद को मैनेज करना, एक लोगों को मैनेज करना। इसके अलावा कुछ नहीं, आप ये कर लोगे, सब कुछ धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट करता है। और आपका कैरेक्टर और कॉन्फिडेंस दोनों होना चाहिए। तो लोग ऐसे कहते हैं सर आपसे तो होता नहीं, हमने बोल, राइट? एंड आई हैव सीन गुड टू बैड डेज। मैंने ऐसे ऐसे एम्प्लॉय देखे हैं जो 5 साल बाद भी छोड़ के जा रहे हैं और उसके बाद उनको रियलाइज हो रहा है। दैट इज वेयर आई जस्ट से focus on why you want to do a startup, understand process क्या क्या चीजें आप लर्न कर सकते हो। वाई कॉम्बिनेटर एक है, मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगा।
I'm gonna put a name in the chat. आप YC के videos देखो. It's called Y Combinator. और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको YC बोलते हैं. हम इसके YouTube पे वीडियोस देखो, बहुत अच्छे वीडियोस. स्टार्टअप करना क्यों चाहिए, प्रोडक्ट के लिए यूजर लाए कैसे, लर्न, अपनी कॉन्फिडेंस पे काम करो. अपने आप कॉलेज के साथ साथ इनके वीडियोस देख सकते हो. एंड दे आर वेरी गुड आर्टिकल्स आल्सो. 90% स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स इनका फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं. लीडर है इस फील्ड में, राइट. एंड सेकंड, वर्क ऑन योर ओन कैरेक्टर, वर्क ऑन योर ओन डिसिप्लिन. अपने फिजिकल क्वेश्चन, अपने इंटेलिजेंस क्वेश्चन, अपने इमोशनल क्वेश्चन और अपने स्पिरिचुअल क्वेश्चन पे काम करो. एंड दैट इज वेयर इट विल हैपन, राइट. बिकॉज जब अपॉर्चुनिटी आएगी, तलवार हाथ में होगी, चलेगी कैसे? यू हैव टू बी द स्ट्रेंथ टू हैव इट एज वेल. अपॉर्चुनिटी तो आएगी, बट यू हैव टू बी पर्सनली आल्सो रेडी टू डू. सो दैट इज हाउ आई एंड द सेशन फॉर किक स्टार्ट योर स्टार्टअप. तो इसमें दो चीजें हो रही हैं. आपका स्टार्टअप भी किक स्टार्ट हो रहा है और आपको खुद को भी किक स्टार्ट करना है, so that you can lead it actually. Right. So that's all from my side, Purvanshi. I will be open for questions and hopefully I was able to convey the gist. क्योंकि सेशन 1 घंटे का था, 2 घंटे का होता तो मैं तो और चीज से डालता. It was just 1 hour, so I tried my best to fit it in. No, sir, it was a wonderful session. I loved your quote, reset, refocus, and restart. It's a simple phrase, but it has a deep learning. And thank you very much for such an informative session. Now, if anyone wants to ask any question from sir, they can ask. Sir, I have a question. बिल्कुल. Thank you. Go ahead. So you had said about being means following monopoly. I could not understand that term. मोनोपोली का मीनिंग क्या होता है? I'll go back to that slide actually. हाँ, मोनोपोली का मीनिंग क्या होता है? Try to solve a problem which no other startup is solving right now. तो अगर आपकी वन ऑफ दी, जैसे अब शुरू में इंडिया में था मेरू कैब्स की, राइट, लेकिन ऐसा उबर जैसा सर्विस बहुत फेमस नहीं था. So उबर का मोनोपोली हुआ शुरू में, राइट. इट इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज ओनली टू डू दैट, करेक्ट. इसके अलावा फिर आपके पास ओला आई बाद में, बट अर्ली मूवर एडवांटेज उबर को मिला काफी हद तक और पहले से सक्सेसफुल मॉडल ले चुके थे. अब दूसरा एग्जांपल है मोनोपोली का कि पहले 4G नेटवर्क्स मिल रहे थे महंगे. 3G का इंटरनेट इतना महंगा था, राइट, 250 रुपए का था बचपन में, और इतने सब इट वाज वेरी एक्सपेंसिव. डेटा पैक अलग है, रोमिंग का पैक अलग है, ऑल इंडिया रोमिंग का चार्जेस अलग लगता था. आपको रोमिंग फ्री है ना, आपका कई जगह पे रोमिंग इंक्लूड होता पैकेज. सो जियो ने क्या करा, एक नई मार्केट बनाई, मोनोपोली, राइट. मोनोपोली का मतलब होता है सिर्फ हम हैं शुरू में. इसे बोलते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी. ब्लू ओशन का मतलब क्या है कि कस्टमर से लेकिन आपने उनको नई चीज पिच करी, इससे मोनोपोली बोलते हैं. समझे इस बात को? और दूसरा एग्जांपल Yes, दूंगा sir. नॉन मोनोपोली का, ई कॉमर्स. अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर खोला है अपना, अमेजोन का भी है, आजियो का भी है, मिंत्रा का भी है, सभी का तो है, तो वो मोनोपोली नहीं है किसी की. समझ, मार्केट डिवाइडेड है, तो कस्टमर को लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. अभी आप कहाँ से शॉपिंग करते हो? अमेजोन से करते हो, फ्लिपकार्ट से करते हो, या दोनों में से जो बेटर लगता है वहां से करते हो? जो बेटर लगता है. हाँ, तो आप मोनोपोली नहीं बना पा रहे. सो दे हैव टू स्पेंड डिफरेंटली, दे हैव टू ऑफर डिफरेंट थिंग्स. अब जैसे कई बार होता है ना, कुछ फोन सिर्फ एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट के पास से बिकते हैं. देखा आपने, जब फोन लॉन्च होते हैं कई सारे, तो दे सेल एक्सक्लूसिवली ऑन फ्लिपकार्ट. आप कई सारे नए फोन एक्सक्लूसिवली ऑन अमेजोन, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट है. वो लोग वहां पे मोनोपोली बनाते हैं थोड़ी सी, बट अदरवाइज ई कॉमर्स का बिजनेस थोड़ा सा मोनोपोली हुआ. इसे बोला था, इसका मीनिंग था गो फॉर मोनोपोली, गो फॉर एन एरिया अदर पीपल नॉट एबल टू ऑफर. जैसे आजकल घर पे सैंपल लेने लग गए हैं ब्लड का, राइट, अगर कुछ टेस्ट कराना है. शुरू में लाल पैथ लैब वाज वन ऑफ द बिगेस्ट वंस टू डू दैट. उनके टेस्ट भी काफी अच्छे. तो क्रिएट अ मोनोपोली, फिर धीरे धीरे अब और लोग आ रहे हैं, करेक्ट. इससे क्या होता है, लेकिन लीडर कौन बना, फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ? उन लोगों को. एनीबॉडी एल्स? और किसी का कुछ क्वेश्चन? सेशन Sir. ज्यादा समझ आया? बिल्कुल नहीं. हाँ बिल्कुल. सर, आज की डेट में अगर आपको कुछ ऐसा सीखना हो जिसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं हो, तो आपका कोई इसे सीखने का फ्रेमवर्क है? मतलब आप कैसे प्रोसीड करोगे? या पहले मैं YouTube वीडियोस देखता हूँ. बेस्ट फॉर मी इज आई गो एंड वॉच YouTube वीडियोस एंड रीड आर्टिकल्स अबाउट दैट. मतलब नॉट डाइविंग डीप, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीखना शुरू कर दिया और एक साथ सीखता. आई गिव इट अ वीक एक्चुअली. मैं अपने पास एक वीक का रूल रखता हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू एक्सप्लोर ना, इस फील्ड में कोई बिजनेस आइडिया आ सकता है क्या. सो व्हाट आई डू इज आई गिव इट अ वीक मैक्स.
जैसे आई एम ट्रैवलिंग इन अ कैब और आई एम ड्राइवर के साथ जा रहा हूँ, कार में हूँ, और इवन इफ आई एम ड्राइविंग, इफ आई कैन जस्ट लिसन ऑन द साइड टू सम वीडियोस यूट्यूब पे, क्या एनालिसिस सर है, क्या मतलब रिव्यू है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से नहीं, समथिंग मतलब कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज हो, उसमें आपको अगर कुछ ऐसा सीखना हो जिसके बारे में आपको नहीं पता हो, तो आप कैसे प्रोसीड करोगे? पहला फिर वहां भी यूट्यूब देखता हूँ, पहले आइडिया क्या है, क्यों चल रहा है, क्यों करना चाहिए। देखो कोई भी टेक्निकल सीखने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा करना है कि नहीं करना। सेकेंड व्हाट आई डू इफ इट्स वेरी टेक्निकल इज आई सर्च फॉर रिसर्च पेपर्स, क्योंकि मैं खासकर एआई की फील्ड से आता हूँ। आई स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम 1984 मैथमेटिक्स वाली बुक्स की। आई ट्राई टू सी कि क्या एडवांसमेंट हुआ है, कैसे हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैव हैपेंड मी इज टू, मेरे खुद के भी कई सारे रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस हैं। और टेक्निकल चीज मैं रिसर्च पेपर देखता हूँ उसके अराउंड, तो उससे मुझे दो चीजें समझ आती है। एक तो टेक्निक समझ आती है, दूसरा वो टेक्निक यूज कैसे हो रही है वो समझ आता है। और उसके बाद कुछ बुक्स होती हैं, उससे स्टडी करता हूँ। और डॉक्स होते हैं टेक्निकल में, जैसे मेरी फील्ड तो ये है ब्लॉकचेन है, तो रिसर्च पेपर हो गए ब्लॉकचेन में, डॉक्स होते हैं बहुत सारे लैंग्वेज के या सिक्योरिटी के, वो सब पढ़ना पड़ता है। और फिर कुछ रिसर्चर होते हैं उनको फॉलो करता हूँ कि वो लोग किस फील्ड में काम कर रहे हैं। बिकॉज आप टेक सीख जाओगे इनिशियली, कहीं से भी ट्यूटोरियल मिलेगा, उसका यूजेज सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सर, आपकी थैंक यू। फील्ड, बाकी मैं आपकी फील्ड पे आंसर करता हूँ, राइट, बिकॉज मेरी एआई ब्लॉकचेन है, तो मैं उसी के हिसाब से। एनीबडी एल्स? ठीक है, थैंक यू गुरवंशी, एनीथिंग फॉर मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। होपफुली आप लोग को ज्यादा बोर नहीं किया, एंड होपफुली मैं अपनी लाइफ का क्रक्स व्हिच आई वांटेड टू शेयर, ट्रस्ट मी व्हेन आई से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं दे रहा हूँ। मतलब दैट्स एक्चुअली आफ्टर 8 years ऑफ 7 to 8 years ऑफ माय एक्सपीरियंस इन द स्टार्टअप फील्ड, जो मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल 2 लाइनों में और एक सेशन के अंदर आई। अब बाकी इस डायरेक्शन में चलना इज ऑन यू नाउ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर दिस सेशन is on you to see how you can grow with these sessions and future sessions. Thank you, sir. It was very interesting session, and we'll look forward for some more sessions with you as well. Thank you. And I hope everyone, I'm sure actually everyone has enjoyed your session. Actually, thank you students, and I have a very deep attachment to students. Hopefully आप लोग बुलाते रहे, and I am happy to take more sessions as well. And जितना time मिलेगा, then I can go into deep as well. Today I had to cover so many things, but I tried my best. Thank you so much for listening as well. Thank you, Gurvanshi. May I leave now? Yes, sir, you can leave. Thank you, Yeah. sir. Once again, thank you. Thank you. Just fill out the forms, please. It will help us do better. A feedback form, such बोल देना. If you think I should improve something as well. Yeah, there is, it's shared in the chat. So please go through that. Thank you. Yes, sir, we'll fill it. You all can leave after filling the feedback form. It's in the group chat.